their interest. So what will you say? Post-scholastic activity of music. Delete everything. Is that clear to all of you? Post-scholastic activity for? Is that clear? Post-scholastic activity for dance. Clear? On what I simply session on unit plan, which is your syllabus data and skill based framework for all subjects. So you will start planning, it will be easy for you. Both will go hand in hand. Now before we start the training, certain things I want to bring to your notice. See, all this will be, like you said, if we have children, then only we can teach. The number in the school has to increase, right? So first thing that everyone has to do is, you will be maintained. These are general instructions which I am giving you. Follow those general instructions. First, let me start with general instructions. All teachers have come? Yes, okay. Except Vinita has come or not? Where is Vinita? She is busy with the store work. Ask her to come for the training. Training is important. Acha, Akarshan, first put a list of activities that we have. Co-curricular activities for the next year. Without such as put that. When should I open the academic calendar? Whole academic calendar or only the List of activities. Now 17 activities that we have planned. And now our activity academic calendar is finalized. No? There's nothing that we need to do. No. Today, something else is there. Finalized or no? Yes, ma'am. So today we are going to post that. Okay. First you post it in the academic group and you post it in the classroom, telling them that this is the activity and academic calendar for the academic year 2023-24. First you go through it. If you have any doubts regarding it, because we have already made it. KG is separate, Shivangi. We have already made it, but you have to go through it properly. After all, there can be some errors also. So there's something first to let me know. First, everyone should go through the activity and academic calendar. KG is separate, main school is separate. Clear to all of you? And then once you feel everything is okay, then you can post it to your parents by saying that this is the activity and academic calendar for next year. Now teachers, as I told you, it is better to maintain a parent communication register once in 15 days. In a month you call the parents how many times? Twice. You already keep that in mind. Now this is your end of the month. So start calling them. What will you do? Start calling them. What are the points that you will tell them while calling them? First, we had started our foundation program. Some parents were absent only. So what will you tell them? We had started. Those who already attended, you will tell them, you know that we were doing a foundation program. You can ask your children itself what sort of improvement. In the foundation program, we are helping them to become self-learners. हिंदी में ही बात करना, मैं इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ, self-learners. They will be able to write of their own. They will be able to express their ideas. Similarly, the foundation for reasoning. Okay, in science, the foundation for reasoning, there will be a foundation for logical thinking skills, and the foundation for basic calculation in maths, basic arithmetic operations in maths will become strong. And we have worked on that. This is not a one-year process. It is going to happen every year. That's the first thing that you tell the parents. Second thing that you tell them is, second thing that you tell them is, see, henceforth, to develop, आप लोगों को मालूम है, to develop the soft skills of the children, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमने देखा है छोटे-छोटे शहरों में, फिर आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हो और आपको मालूम है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, मालूम है ना आप लोगों को? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्लास असेंबलीज के द्वारा उनके स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर मंथली क्विज के द्वारा उनके कॉन्फिडेंस लेवल को और जीके अवेयरनेस को इंक्रीज कर रहे हैं। मंथली क्विज के हमारे अलग अलग थीम पर बने हुए। अच्छा मानो वो थीम पे आज फिर एक्टिविटी कैलेंडर में तो आ ही जाएगा, तो आप बोलोगे तो हमारे एक्टिविटी कैलेंडर में आप देखोगे कि मंथली क्विज है बच्चों के लिए, अप्रैल में स्टीम क्विज आ रहा है। इस तरह से हर मंथ में एज पर द थीम ऑफ द मंथ हमने बच्चों के लिए क्विजेस प्लान किए हैं। और आपको मालूम है आप क्या करते हो, जब बच्चा
12वीं खत्म करता है, आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए आप बाहर भेजते हो, उसके लिए भी आपको कितना पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं, और बेसिकली जो लाइब्रेरी इंचार्ज होती है स्कूल की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ही सारी प्लानिंग की है। और उसका अपना, अच्छा मैं इसके बाद भूल गया पीछे ये, उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सेलिब्रेशन ऑफ, जो भी हम लोग बच्चों को अपने कल्चर के बारे में, ओके, दे शुड नो अबाउट देयर कल्चर, उनको अपने कल्चर से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो वो सेलिब्रेशन हम स्कूल में करवाते हैं। अभी आप बोलोगे सेलिब्रेशन, बोला हर सेलिब्रेशन में एक लर्निंग आउटकम है, हर सेलिब्रेशन में क्या है, सीखते हैं, समझते हैं। हम हर सेलिब्रेशन में एक लर्निंग आउटकम बताते हैं, उनके 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसीज को हम, तो उनके अंदर जो 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसीज है वो भी उनके अंदर एम्बेड होती है, क्योंकि आज का स्किल सोसाइटी है, यहाँ पर रोड लर्निंग के लिए कोई जगह नहीं है। जब तक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे, मैनिफेस्ट नहीं करे, उनको अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती है। तो ये सारे सेलिब्रेशन को जिसके लिए इन सब चीज़ों की तैयार करती है। उसके बाद क्या है, समर कैंप। पिछली बार आपको याद है कि समर कैंप में हमसे मटेरियल आप लोगों से मंगवाए थे, और कम से कम समर कैंप के लिए 1000 रुपये का मटेरियल लगता है, वहाँ पे 1000 रुपये डाल दो तो 1000 रुपये का तो मटेरियल लगता ही है बच्चे के लिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सारी चीज़ें हम स्कूल से ही सप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे पैसा ही बच रहा है। अगला है आपका स्वेरिंग सेरेमनी, जहाँ पर बच्चों को लीडरशिप के लिए ट्रेन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लीडरशिप बनेंगे लीडर्स बड़े क्लास से, पर छोटे क्लास के बच्चों को भी अपने वोट करने का राइट हम देंगे, बैलेट बॉक्स तैयार करेंगे, ठीक है ना। बच्चों से ही बुलवाएंगे कि आपको कौन सा लीडर अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, है ना। वो बुलवा के हम बैलेट बॉक्स बच्चों से डलवाएंगे। तो वहाँ पर उनके हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को, उनके पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। अगला क्या है, हाउस फेस्ट। अगर कोकरिकुलर पॉलिसी भी है उसके अंदर, वो भी शेयर करूँगी पेरेंट्स के साथ। वो ना हमारी कोकरिकुलर पॉलिसी बनी है स्कूल की, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस कोकरिकुलर पॉलिसी के अंतर्गत हर बच्चे को जो है किसी न किसी आइटम में पार्टिसिपेट करना ही रहेगा, ठीक। तो वहाँ पर देखिए बच्चों के ग्रुप डांस होंगे, इंडिविजुअल डांस होंगे, डेक्लेमेशंस होंगे, डिबेट होंगे। तो जो भी वो करेंगे उसी कॉस्ट्यूम में सारी चीज़ें करेंगे। तो ये कॉस्ट्यूम कहाँ से आएंगे, हम ही देंगे बच्चों को, और वहाँ पर भी 1000 रुपीज़ आ गया हाउस फेस्ट। उसके बाद आपके सारे नेशनल फेस्टिवल, आपको मान लीजिए ने रिपब्लिक डे करवाया, इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए भी कॉस्ट्यूम 500 रुपीज़ आ गया। अब राखी मेकिंग क्यों करवा रहे हैं बच्चों से, उनको राखी की इम्पोर्टेंस मालूम होनी चाहिए। तो जब बनाते हैं ये सारा मटेरियल कहाँ से आएगा, स्कूल से आएगा, ठीक है ना। और कम से कम जो है राखी मेकिंग मटेरियल के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ तो लगता ही है, ठीक है ना, पर चाइल्ड। तो वो भी आप लोगों को नहीं भेजना है। अगला क्या आपका सेवा स्टॉल पर चिल्ड्रन फॉर ओपन हाउस। बच्चे जो है ओपन हाउस में अलग अलग सेवा स्टॉल लगाएंगे, हैं। उसका ऑलरेडी मटेरियल परचेज के लिए चला गया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स होंगे, ये पेंटिंग्स होंगे, और ऑलरेडी हमारी टीचर जो है उनको बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू ही कर दिया उन्होंने। तो इसके लिए भी सारा मटेरियल, और ये सेवा स्टॉल के लिए कम से कम 1000 रुपये का मटेरियल तो एक बच्चे के लिए आप लगा लीजिए। और ऐसे 4 सेवा स्टॉल, 4 है ना, 6 लास्ट के लिए नहीं है, लास्ट के लिए नहीं है, मतलब मिनिमम 4 सेवा स्टॉल तो बच्चों के लगेंगे साल में। तो 4 मतलब 4000, है ना। तो क्या था, उसके बाद क्या है, दिवाली सेलिब्रेशन, नवरात्रि सेलिब्रेशन, ये भी क्या है, बच्चों को एक लर्निंग है। क्यों दीपावली, क्यों नवरात्रि, तो लर्निंग आउटकम ये सारी चीज़ें बच्चे समझते हैं सेलिब्रेशन के बाद, उनके दिमाग में हमेशा रहती है। फिर एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसके लिए बच्चों के फॉर्मेशन डांस रहते हैं, ठीक है ना। हर क्लास को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उसके लिए भी कॉस्ट्यूम मिनिमम आप 500 रुपये पकड़िए उसका, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, लोहरी और मकर संक्रांति क्यों करवा रहे हैं बच्चों को, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बच्चों को मालूम तो होना चाहिए फेस्टिवल क्यों होता है पंजाब में, मकर संक्रांति क्यों गुजरात वगैरह में होती है, सारे ये आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। तो उसके लिए भी आप लगा लीजिए, जब लोहड़ी के लिए हम सामान लेकर आएंगे, हम जो है क्या मतलब आग, अभी कोई नहीं जाएगा, कौन कॉल कर रहे हैं, अभी नहीं बोलो, मेरा हम लोग ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है ना। लोहरी और मकर संक्रांति, तो ये भी क्या है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मालूम होता है कि विंटर सीजन होता है, क्यों होता है, हर चीज़ का एक लर्निंग आउटकम रहता है। और जब भी हम ये सेलिब्रेशन करवाएंगे बच्चों को, हम क्रॉस करिकुलर लिंक भी करवाते हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम लिंक करते हैं। ये बोलना, जब भी सेलिब्रेशन होगा हम क्या करेंगे उसको, हाँ, क्रॉस करिकुलर अप्रोच भी रहता है, हम सारे चीज़ों के साथ उसको लिंक करते हैं।
उसके बाद आया आपका ये हो गया आपका बुक वीक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक वीक में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कैरेक्टर पोर्ट्रेट है, फेरी टेल्स हैं, तो उसमें बच्चे बड़े कॉस्ट्यूम पहनेंगे, अपने आप को पोर्ट्रेट करेंगे। आप कम से कम इसका भी पूरी बुक भी पूरे एक हफ्ता चलेगा, एक हफ्ते के लिए कम से कम 1000 रुपये के कॉस्ट्यूम बच्चों के लिए पाएंगे, ठीक है। और बुक वीक तो क्या बच्चों को हम लोग वी आर देखिए गेटिंग देम इंटरेस्टेड टू रीड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट थिएटर फेस्टिवल्स क्लास वाइज ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, और थिएटर फेस्टिवल्स में क्या दे रहे हैं, बुक्स लाइक रैपुंज़ल, स्नो वाइट, मतलब क्लास 6 फेरी टेल्स है ना, और अच्छे अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट ऑथर्स की स्टोरी, जैसे मालगुडी डेज बाय आर के नारायण, तो बच्चों का कम से कम वो नॉलेज भी इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के नॉलेज को भी इंक्रीज करती हैं। ओके, सिर्फ एक सेलिब्रेशन मियर नहीं, इट इंक्रीजेज है नॉलेज ऑल्सो। अगला क्या है, थीमेटिक एनुअल डे, और इस साल मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, मैं अभी आपको बता देती हूँ। हम लोग का थीमेटिक एनुअल डे इस साल होगा कलर्स। क्या होगा? कलर्स। जो इस थीमेटिक एनुअल डे को करवाएंगे, सारे कलर्स को लेकर आएंगे, 5 क्लासेस को डिस्पर्स करवाएंगे, तो आप देखेंगे इस बार जैसे एडुफेस्टा से कहीं ज़्यादा आप लोग ऐसे एडुफेस्टा से पेरेंट्स बहुत खुश था, बोला पहला थीमेटिक एनुअल डे जो करवाने वाले आप देखते रहिए, और उसके कॉस्ट्यूम्स काफ़ी कॉस्टली आएंगे, अराउंड 1200-1500 आप लगा लीजिए एक बच्चे के लिए, और हर बच्चा स्टेज पे रहेगा, ये बोलना। उसके बाद क्लब इवेंट, छोटे छोटे क्लब इवेंट्स हैं, उसके लिए उनका क्लब डेकोरेशन, जैसे क्लब बोर्ड के डेकोरेशन, क्लब असेंबलीज, उसके लिए भी कॉस्ट्यूम लगेंगे, आप मिनिमम 500 रुपया लगवा लीजिए। और हमने आप देखना बोला एक्टिविटी कैलेंडर के अंदर सारा कुछ प्लान है। नेक्स्ट क्या है आपका चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, बैक फंक्शन को था हटा दो, बैक फंक्शन को हटा दो, एकदम यही रहना, मैंने दे दिया उसके। उसके आप बोलेंगे लास्ट बस प्रोजेक्ट होना, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के बाद प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स आपको मालूम बोला कि पिछले साल आपको खुद ही मालूम है, सामान मंगवाते थे हम, इस बार कोई सामान भी नहीं आपसे मंगवाएंगे, सारा प्रोजेक्ट्स स्कूल के अंदर ही होगा, और वो हर हफ्ते बच्चे इनोवेशन करेंगे, ठीक है। आप मिनिमम एक सब्जेक्ट के 100 रुपया लगाइए, तो अगर 4 से 5 सब्जेक्ट कितना हुआ, 400-500 रुपये, 400 × 10 4000 रुपये, और आपसे हम ले कितना रहे हैं 6000, हमारा भी मेरे ख्याल से 15 के करीब आएगा इसका टोटल, हमारा 15 के करीब आता है, पर हम ले रहे हैं आपसे सिर्फ 6000 रुपये, वो भी 4 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये बोल के आपको दे दें 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, ओके, दैट आल्सो पर वीक। तो एक वीक में अगर हम करवा लेंगे, अभी आप लोग करवाओगे हर वीक, आपके इनोवेशंस हो गया है, उसको आपको एग्जिबिट भी करना है, पर वीक अगर आप 100 रुपीज दे रहे एक सब्जेक्ट का, चलो 400 × 4 कितना हो गया, 1600 इन अ मंथ इटसेल्फ, 1600 × 10 कितना हो गया, 16000। उनको ये जरूर बताना, बोला 16000 का जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा बच्चों का, क्योंकि हम यहाँ पर, तो आप बताइए सिर्फ इसके लिए हम ले रहे हैं, आपने पिछली बार भेजा था, एक बार काउंट करिए। इज दैट क्लियर? ये साफ हो गया। अभी आते हैं हम लोग यूनिट प्लान पे, इसके ऊपर हम लोग यूनिट प्लान, यूनिट प्लान और आज मैं ना मतलब यूनिट प्लान फॉर्मेट भी शेयर करूंगी, प्लस मेरे पास हर सब्जेक्ट का एक सैम्पल पड़ा हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। और जैसे मैंने बोला अपने क्लास में स्टार्ट कर दीजिए आप, टाइप्स ऑफ लर्नर्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मैंने आप लोगों को दिखाया मल्टीपल इंटेलिजेंस का पीपीटी दिखाया है, आप ये देख लीजिए। नीचे को थोड़ा एक और चीज करना है आपको इसमें, थीम, इसको एक तरह यूनिट के बाद एक और आप लोग लिख लीजिए, एक और बना लेना आप थीम, क्योंकि आप जब थीम एक साथ ही डाल देंगे आप लोगों के लिए आसान रहेगा। क्या लेसन उसका क्या थीम, उसी थीम के ऊपर आपको क्या करवाना है, टू मेक इट टू द क्रॉस करिकुलर लिंक इन दैट लेसन। केजी को भी अभी प्लान करना है शिवांगी क्रॉस करिकुलर लिंक, तो ऐसे अभी हम जो पढ़ाने वाले हैं टॉपिक, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप इस टॉपिक के थ्रू क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने वाले हैं। अभी मैं आपको अपना स्किल बेस्ड फ्रेमवर्क भी दूंगी, देन यू विल नो, लाइक दिस वीक आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन अनसीन रीडिंग पैसेजेस,
or this week I'm concentrating on problem solving. This week maybe I'm going to concentrate on reasoning skills of the children. This week whatever I'm going to concentrate. तो उस लेसन में जो भी हम बच्चों को पढ़वाने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव्स आपके आ जाएंगे। फिर आपका है क्या क्या कॉम्पिटेंसीज। अब मैं बता दूं आपके इस कॉम्पिटेंसी में आपने देखा कि what 13 competencies, right? So when you do one lesson, because you might have some throughout the year, you must be having some 14 to 15 lessons. So when you do a lesson, don't focus on more than 2 competencies. Is that clear? जब भी आपको लेसन करवाएं तो 2 से ज़्यादा कॉम्पिटेंसीज पे फोकस मत करिए। अब मैं जब लेसन स्टार्ट किया डेट ऑफ स्टार्ट एंड मैंने कब स्टार्ट किया और मैंने कब उसको एंड किया। उसके बाद आपका मतलब यू हैव टू रियली प्लान इट आउट, कितने पीरियड्स मेरे लगे, कितने पीरियड्स लगे मेरे। उसके बाद यूज ऑफ इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, पढ़ाने के लिए मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आपका एक प्लानिंग हो जाएगा आपको फिर अपना डीएलपी बनाने में आसानी रहेगी। मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज वहाँ पर एम्प्लॉय किए, KWL किया है, वर्ड वेब किया है, वेन डायग्राम किया है, जिग्सॉ रीडिंग की है, ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन किया है। तो जो भी आपकी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज है वो वहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट चेकिंग प्रीवियस नॉलेज, मैंने क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों के प्रीवियस नॉलेज, 1-2 क्वेश्चन आपको वहाँ पर डालने पड़ेंगे। उसके बाद क्या क्या रिसोर्सेज में इस टॉपिक के लिए यूज करने वाली हूँ। उसके बाद क्या है कौन सी वैल्यू और कौन सा क्रॉस करिकुलर अप्रोच मेरा रहेगा। मैं मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ ये लिख देना कि लिंक विद ज्योग्राफी, तो मैं जिस भी करने वाली हूँ उसका छोटा सा एक सिनॉप्सिस मेरे को देना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के साथ और क्या करने वाले। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है इस लेसन का लर्निंग आउट क्या है, एलिमेंट ऑफ इनोवेशन। जैसे हमने देखिए इस वक्त कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक तो क्या है यूज ऑफ इनोवेटिव स्ट्रैटेजी, पढ़ाते समय क्या टेक्निक्स में यूज करें, टूल्स एंड टेक्निक्स। और यहाँ पर क्या है एलिमेंट ऑफ इनोवेशन, क्या इनोवेशन करवाने वाली हूँ मैं, कोलैज करवाऊंगी, पोस्टर करवाऊंगी, ठीक है ना, कोई वर्किंग मॉडल करवाऊंगी, क्या मैं करवाने वाली हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल? जो भी मैं मतलब एलिमेंट ऑफ इनोवेशन मैं उनसे क्या पोएट्री लिखवाने वाली हूँ, स्टोरी राइटिंग करवाने वाली हूँ। और ये देखिए लैंग्वेज में क्या है, साइंस में यू कैन आस्क देम टू डिजाइन एडवर्टाइजमेंट्स, मैं एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करवाऊंगी उनसे, ये भी तो करवा सकते हैं, लिखवाना है मैंने ये लिखवा दिया हम लोगों से, ठीक है ना, तो ये आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? क्या क्या आ सकता है आपका इनोवेशन में बताइए, खुद ही बताइए। इवन स्लोगन दे कैन राइट फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, स्लोगन दे कैन राइट, या स्लोगन्स, ठीक है ना, डायलॉग बना सकते हैं, कॉमिक स्ट्रिप बना सकते हैं, ये सब नो। फिर कभी कभी वो न्यूज़पेपर बना सकते हैं, जैसे साइंस न्यूज़पेपर, छोटी छोटी चीजों को ज्वाइन कर लो, साइंस न्यूज़पेपर आपका वही न्यूज़लेटर बन गया उस बार। ओके, न्यूज़लेटर ऑफ ग्रेड 2 आ रहा समझ में, केजी न्यूज़लेटर, ठीक है ना, केजी का तुमने जो भी बनाया केजी मैगजीन बच्चों के वर्क के साथ जो हमने इस टॉपिक के साथ किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनोवेशन क्या क्या सकता है मालूम है ना? हाँ, नीता कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? अपने इस बार ये करो, लैंग्वेज टीचर्स के साइंस टीचर्स भी करो, अपने वो न्यूज़पेपर्स बनवाओ बच्चों के से, है ना, साइंस हेराल्ड, ओके, ये तो छोटे साइंस फिक्शन भी लिखवा सकते हो आप अपने बच्चों से। साइंस फिक्शन का मतलब समझते हो? मतलब जहाँ पर साइंस की कुछ इन्वेंशन की हम लोग कल्पनात्मक स्टोरी जो लिखी, फैंटेसी को आपको मतलब ये गैजेट ऐसे हुआ, उस गैजेट से जो है जैसे बोलते फ्लाइंग कार, है ना, तो मैंने बोला फ्लाइंग तवा, मतलब एक तवा है फ्लाई करता भी है, तवा फ्लाई करते करते रोटी बना लेता है, मतलब बच्चे ने भी इमेजिनेशन से लिखा है उस चीज को, तो कैसे तो साइंस फिक्शन भी तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया उसके ऊपर आपने कुछ पॉइंट्स दिए, दे कैन इवन राइट साइंस फिक्शन। बच्चों ने अपने पेजेस लगा दिए, तो पेरेंट्स आएंगे, साइंस फिक्शन क्रिएटेड बाय द चिल्ड्रन, न्यूज़पेपर क्रिएटेड बाय द चिल्ड्रन, कॉमिक स्ट्रिप्स क्रिएटेड बाय द चिल्ड्रन, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द चिल्ड्रन। जैसे हमने जैसे बोला मैथ्स में क्या है, मैथ बाजार, मॉल अगले साल जरूर करवाइएगा आप लोग। जैसे बोला छोटा मॉल बना दिया क्लासरूम में, मॉल में क्या होता है अलग अलग चीजें बिकती है ना, तो आपने क्या वहाँ पे बच्चे बाइंग एंड सेलिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना, पिकल मेकिंग, मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट प्रिजर्वेटिव्स, क्लास में लेकर आए पिकल बनाए बच्चों ने, ठीक है, सेवा स्टॉल में वो भी सर्व करिए, पिकल मेड बाय द चिल्ड्रन, क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, यस सर नो, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So this is your element of innovation, what you are doing with the children. You will write a few things. जैसे अब जैसे बता रहे हैं टॉपिक को कर रहे हैं,
फॉर एग्जाम्पल अभी आपका है यहाँ पर आपने लिखा ना, मतलब क्या वो याद आ रहा है कि अपने जैसे लैपटॉप को स्टोर करते हैं। तो कॉम्पिटेंसीज कितने लिखते हैं लेसन में? Got it ना? अभी भी आपको स्टार्ट करना है, आप लोगों को ये भी दूंगी, I'll be giving you samples also. बुक और जैसे आपका यूनिट में क्या है, आपका टॉपिक आ रहा है, उसके बाद क्या लिखिएगा? थीम के ऊपर आपको इनोवेशंस करने हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको लिंक विद ग्लोबल करेक्ट नहीं दिया हुआ, दैट्स इट, यू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ तो I'm giving you a broad outline, what are we doing? A broad outline. तो पेरेंट्स को मालूम चलेगा ऐसा होने वाला है स्कूल के अंदर। और यूनिट इज योर टॉपिक, व्हाट इज योर यूनिट? टॉपिक। उस टॉपिक को किस थीम से मैंने जुड़ा हुआ है, इसलिए तो उस टॉपिक को किस थीम से मैंने जुड़ा हुआ ताकि मेरे को इनोवेशन करने में आसानी हो। दिस इज क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड एनी डाउट इन दिस? एक बार देख लीजिए आप, साइलेंटली यू सी दिस वन से। चलो छोड़ो सब साइलेंट। Brainstorming, group discussion. Yes, okay, everything politics spell B आप करवाइए क्लास में, आप आ गया ना, अभी मैंने बताऊँ किसके, ये आपके डेली प्लान में रहेगा, लैंग्वेज टीचर्स के लिए रहेगा, वो सब इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज हैं आपकी, ठीक है ना? कंटेक्चुअल सेंटेंस मेकिंग, ये भी तो इनोवेटिव है ना। यूजुअली हर स्कूल में क्या होता है, एक वर्ड लिया उसका एक सेंटेंस बनवा दिया, हम तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंटेक्चुअल सेंटेंस मेकिंग इज आल्सो योर इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। कैटेगरी नीता? यस मैम, ठीक है ना? हमने बोला पोएट्री को मैंने लिया है, पोएट्स रेसिटेशन, ठीक है ना? देन समराइजिंग द पोएट्री, अपने आप से हमने क्या किया? समराइजिंग द पोएट्री थ्रू क्लूज, आपने दिया क्लू तो बच्चों को समराइज करना है, वो भी आपका इनोवेटिव स्ट्रैटेजी। नहीं तो हम क्या करते थे अभी तक, एक लाइन पोएट्री की मैंने पढ़ी, उसको 10 बार अपनी भाषा में मैंने समझाया, तो ये तो एंगेज किया ना बच्चे को। आपने क्या बोला? समराइज द पोएट्री थ्रू क्लूज, है ना? क्लूज के साथ, वो भी आपका इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है पोएट्री में। अंडरस्टैंडिंग फिगर्स ऑफ स्पीच थ्रू क्लूज। जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे मैं तो नहीं तो पढ़ा रही हूँ, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटा दी, क्या है बच्चों, चाचा चा हो रहा है तो बताइए कौन सा, क्यों अलंकार है, मम्मी को नहीं मालूम जो भी हो। अरे तो पहले तो बताते हो ना बच्चों को, पर हम यहाँ पर क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर क्या वर्ड रिपीट हो रहा है बताइए, आपने बताया ना। तो ये अभी वो डाउट और इसके अंदर और वैल्यू राइट है ना? इज इज क्लियर? अब इसे यहाँ पे तो मैं लिख दिया वैल्यू केयर, और आपके ये वील को देखना है, उस कॉम्पिटेंसी वील में जो वैल्यूज दी है उसी के अकॉर्डिंग, और जो वैल्यू समझ में नहीं आती उसे इज रेजिलियंस, समझना आप लोगों को क्या है, या तो मुझसे पूछो नहीं तो आप गूगल सर्च करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी, है ना? ये सारी चीजें सर्च करके आपको लिखती है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगी। और जब हम डीएलपी में करवाएंगे, जब बच्चों से डीएलपी में करवाएंगे तो कैसा रहेगा वो? दैट वैल्यू विल कम एज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अगर सब mentioned in on the board, but it will come in come in the question, come in the evaluation question. Is it clear to all of you? इसको अपने लेसन प्लान के साथ लिंक करते चले जाइए, अपने डीएलपी के साथ लिंक करिए। यहाँ पर आपने यूनिट प्लान में क्यों लिखा है ताकि पेरेंट्स को मालूम चले कि बच्चे जब ये लेसन पढ़ेंगे तो ये वैल्यू उनको आएगा। पर हम करेंगे कैसे? क्लास में कैसे करेंगे उसको? क्लास में कैसे करोगे वैल्यू को? question थ्रू इवैल्यूएशन। आपकी इवैल्यूएशन डेली हो रहा है ना आपका, तो थ्रू इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस यू डूइंग वैल्यूज। मुझे ऐसे दिमाग के ऊपर से निकल रहा है क्या? कुछ जवाब ही नहीं आ रहा तुमसे तो। और ऋषिका तुम्हारा भी बाउंस हो रहा है क्या सब कुछ? जब तुम ही लोग का बाउंस हो तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे तुम, और पेरेंट्स को क्या भेजोगे? देखो मैं भी भेज रही हूँ तुम लोगों को। सोशल में सबका है ऐसे, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है ना? यहाँ पर टीचर ने गलत किया, उसको ठीक करवाया था मैंने, जिसको लिखे इंग्लिश एंड साइंस, ऐसे नहीं लिखेंगे आप लोग। मतलब इंग्लिश और साइंस का अगर हमें हो सकता है मैंने कॉमन स्ट्रिप बनवाया हो, ठीक है ना? मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखवाई हो, तो इंग्लिश में कर रहा है इसलिए मैंने इंग्लिश और साइंस लिख दिया। दैट यू कैन जस्ट टेक द क्लू, बट यू विल एग्जैक्टली राइट व्हाट दे आर गोइंग टू डू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये इसमें कोई दिक्कत है अभी? दिस इज जस्ट अ इंग्लिश का क्लास का काम। तो कितना अच्छा है ना,
वीडियो ग्रुप डिस्कशन डिबेट सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। टीचर्स यू नो हाउ टू कंडक्ट डिबेट, मालूम है डिबेट कैसे कंडक्ट करते हैं? अब बताओ शिप्रा कैसे कंडक्ट करते हैं? They used to give them a topic and for and against they have to present their views, and sometimes we are calling them one by one, and sometimes they both stand together and they will just counter attack. They will give. Suppose one has given one point, the other person will The counter. pros and cons of the topic. So how would you do it? Everyone will just pros and cons of the topic, but when children present it, how would they do it? Like she said, अब डिबेट का थोड़ा समझ लो क्योंकि अभी हमको अपने बच्चों से करवाना है। लाइक उसे चिल्ड्रन वन चाइल्ड एक्सपीरियंस जैसे बोला For and हाँ against. जैसे मैं बोल रही हूँ क्या बोलते हैं डिजिटल इरा इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। डिजिटल इरा इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन। इसके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही है ना, आपको मालूम है। तो एक बच्चे ने बोला कि इट इज गुड, एक ने क्या बोला It is not. it is not good. But see, you have to use words like I strongly believe, I strongly oppose, I vehemently feel. See the words. Thanks. हाँ, Thanks ऐसे- we will हाँ। know the thing. हाँ, तो मतलब हमको ऐसे वर्ड्स बच्चों को यूज करना है। Let me tell you audience, a digital era is killing the creativity of people. For everything they search on Google. I strongly believe that in the coming years, man will be just a slave of machines. I vehemently oppose the fact that man doesn't want to use this. So you have to use such words. ये बच्चों को जरूर पता है। जैसे तुमने फॉर एंड अगेंस्ट हो गया, फॉर ने अपना बोला तो अगेंस्ट ने अपना भी बोल दिया, दोनों ने बोल दिया। तो जैसे आपके टीम्स रहते हैं, Yes. ग्रेड जैसे आपने बोला ग्रेड 6 में आप एक वो करवा दिए, 6 बच्चे आपके फॉर के हो गए, 6 बच्चे आपके अगेंस्ट हो गए, बोल दिया सब लोगों ने फॉर एंड अगेंस्ट, सबने सुन लिया। उसके बाद समथिंग कॉल्ड रीबटल सेशन। व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? Rebuttal. तो रीबटल सेशन में it is not for more than 1 or 2 minutes. So any like it's a team now, for team and against team. So then now we have started off the rebuttal session. So everyone has got the liberty to express once again their views. जैसे मैंने कुछ सुन लिया, जैसे मैं फॉर, चलो मैं अगेंस्ट हूँ, शिप्रा फॉर है। तो शिप्रा ने बोला सी बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन वी हैव कम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोला उसने। एंड देन माय ओपोनेंट सेज दैट इट इज किलिंग द क्रिएटिविटी। मैंने सुन लिया, तो मैंने बोला लुक एट माय पार्टनर, शी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। What does it mean? It is killing the natural intelligence. What's the opposite of artificial? Natural. See how it is killing the natural intelligence? In a way, man has become tougher. Many women feel opposite. So my friend is very, very wrong. She doesn't even know what she is talking because you have got the right to cut. As well में मैंने से बोल दिया। अब शिप्रा ने सुना, मेरे को शिप्रा कटना है। बोली look at my friend, I think she still lives in 18th century. She says that, artificial intelligence will make man tougher. Does she even know that this artificial intelligence was also created by man only? And then she talks like this. So my dear friend, please come out of your 18th century and be in the 21st century. ऐसे होता है। Is it clear to all of you? तो बच्चों से इस बार करवाना भी है मुझे। Use the word strongly, vehemently, और जैसे मतलब थोड़ा से एक दूसरे की खिल्ली उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, इस तरह से होता है डिबेट। ये वो आपको तो डिबेट। अब आया persuasive speech, ये जो आपके साथ बात क्या है, persuasive speech। अब what's the difference between debate and persuasive speech? Look at the word persuasive. Persuasive, yeah, persuading someone to accept your ideas. तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? हम ऐसे words नहीं यूज करेंगे, हम facts and figures लेकर जाएंगे। हम बोले जैसे अब ये छोड़ो, मेरे को इसी के ऊपर मेरे को persuasive speech करना था, तो we go with facts and figures. So I say, let's go back, okay, into 1970s. Let's see what creative work was done by man and how man was more social. Now, from 1970, let us come to 2023. I have conducted a survey and I have found that people are mostly glued to their homes. Okay? They have become huge potatoes. Okay, this is the survey report. So now, my dear friends, tell me after this survey, is digitalization helping you in any way? इस तरह से होता है। मतलब आप क्या दिखा रहे हो? Positivity. Yeah, you are showing no facts and figures. मतलब मैं सर्वे दिखा रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ कि फिर मैंने बोला इस साल 1970 के न्यूज़पेपर में ऐसा आया, जबकि 2023 में इतने वॉर हो गए, अब डिजिटलाइजेशन से क्या फायदा हो?
ठीक है ना। अब उन्होंने इसको इवन वॉर के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एथिकल बोलते हैं, एथिकल हैकिंग, हैकिंग कभी एथिकल हो सकता है क्या? 1990 में ऐसा वर्ड ही हमने नहीं सुना था। अब एथिकल हैकिंग भी सुनते हैं और वो सारी चीजें अनएथिकल हो रही है। कितने लोगों के बैंक अकाउंट से हो जाए, मतलब इस तरह से हमने सर्वे रिपोर्ट दिखाया कि इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा नहीं, पर्सिस्टेंस में कोई फॉरेन अगेंस्ट नहीं, जो आ रहा है वो ऑडियंस को सिर्फ trying to make it more सॉफ्ट impressive. तरीके से मेरी राय को आप मानो। तो मैंने जो बोला क्या गलत बोला? Did I say something wrong? Don't you think whatever I said is correct? So don't you agree? And if you agree, please vote for me. और persistence will be keep a voting ballot also. जो मुझको सुन के हाँ करने वाले, जो मुझको सुन के ना करने वाले, तो वो वोट करते चले जाएं। Is it clear to all of you? तो persistence speak करवाओगे by keeping a and इनको बताना है बच्चों को। I hope you are recording. Yes, yes. And send it to the teachers. So you got the difference now? Because you are going to have this in your fest now. आपके fest में होगा persistence speech रहेगा, फिर आपका debate रहेगा। अगला है आपका impromptu. What is it? What is impromptu? Extempore इसको बोलते हैं, उसका एक और word ही है बस impromptu. ठीक है ना? Extempore में क्या होता है? हाँ, आपको जो चिट उठाए, अपने बच्चों को इतने ट्रेन नहीं करना, उनके अगर उनसे क्लूसिव नहीं करना। और चिट भी उठाते हैं तो हर जगह देते हैं 5 या 10 मिनट का प्रिपरेशन टाइम, पर क्लूज नहीं रहते उसके अंदर। हम इस बार क्या करेंगे? कुछ क्लूज देंगे बच्चों को और बोलेंगे 10 मिनट का प्रिपरेशन टाइम। सेंटेंस क्लूज दे सकते हैं और वो 10 मिनट का प्रिपरेशन टाइम, उसके बाद स्पीक। एक्सटेम्पोरे में यू गिव देम अ टॉपिक लाइक दिस एंड यू गिव देम सम प्रिपरेशन टाइम आल्सो। इम्प्रॉम्प्टू में इम्प्रॉम्प्टू, सी द वर्ड इटसेल्फ, इम्प्रॉम्प्टू मींस ऑन द स्पॉट। टॉपिक उठाया, स्पीकर जो आया बोलो। इज इट क्लियर? तो ट्राई करो इस बार बच्चों के साथ। एक्सटेम्पोरे में यू गिव देम, क्या करोगे एक्सटेम्पोरे में? Clue based or क्लू बेस्ड टॉकिंग। इम्प्रॉम्प्टू immediately they are on the इतना कर लीजिए कि इस बार टॉपिक करो और कुछ 5 टॉपिक पहले देके रख देना। बोला इसके ये टॉपिक के बड़े बच्चों के लिए 5 टॉपिक, छोटे बच्चों के लिए 2 टॉपिक, और थोड़ा आपको वही बोल देना, बोला इस 2 टॉपिक में तुमको ऑन द स्पॉट बोलना पड़ेगा। And even we can ask them, suppose we have given them 5 topics and that day we can ask them, you have to pick a chip and that's a creativity of teacher ना शिप्रा, जो अपने creativity के साथ, तो आपको ये सारी चीजें आप इसमें भी करवा सकती हैं। इसलिए आपके सारे इनोवेटिव हो रहे हैं, स्ट्रैटेजीज रहेंगे। जैसे बोला मैथ्स में, हाउ कैन इम्प्रूव इन मैथ्स? ओके, मैंने एक प्रॉब्लम दिया है बेस्ड ऑन व्हिच आइडेंटिटी और बेस्ड ऑन व्हाट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। हर प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर होता है ना, तो इम्प्रॉम्प्टू ऑन से मैंने करा ऑन द बोर्ड नाउ टू किसी बच्चे को उठाया, यस्टरडे कम ऑन ओके इम्प्रॉम्प्टू प्रॉब्लम्स, क्या बोलोगे आप उसको? और एक आपका एक्सटेम्पोररी प्रॉब्लम से क्या है? क्लू बेस्ड प्रॉब्लम्स। So column and will give a formula. Yeah, formula. Okay, this is a clue and use this formula and solve this. Got it? And you can even give them some clues in between. And impromptu problems are extempore problems, call it like that. ये declamation तो आप लोगों को मालूम है, मैंने करवा दिया एक बार आप लोगों को। पर ये like you are declaiming the speech of a famous personality by direct presentation में, जैसे मैंने बोला मैं बनी ट्री, हाँ मैं बनी ट्री, तुम बने वुड कटर, तो मैं रो रही हूँ, प्लीज वुड का मैं कट आई मतलब इस तरह के इनोवेटिव डायलॉग्स। ओके, अ डायलॉग बिटवीन वुड कटर एंड ट्री। ओके, तो उसने क्या किया? गिव देम पोर्ट्रेट आल्सो, यू मेक उसको एक ट्री का शेप दे दिया बच्चे ने पहले, और वुड कटर के लिए थोड़ा सा राउंड रफ एंड है वो दे दिया उसको, फिर डायलॉग का बोलवाया। कितना अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी इनोवेटिव लगेगा ना। तो डायलॉग प्रेजेंटेशन तो सब क्लास में करवा सकते हो, ये सब लिख के रखो, दिस विल बी योर इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज। फिर कैरेक्टर पोर्ट्रेट, कैरेक्टर पोर्ट्रेट में अलग, जैसे बोला कि मैंने आई एम पोर्ट्रेइंग अ ट्री, बट मैं पोर्ट्रेइंग ट्री, आई कैन पोर्ट्रेइंग अ ट्री, यू नो व्हाट एंड ऑल आई गिव यू, लुक एट माय ग्रीनरी, सो इफ you don't cut me, your entire atmosphere will be green like me, and you know how my leaves help you, हर चीज उसने बोल दी। तो again you have dressed a person as tree itself, that is character portrayal, when the individual person comes and It's speaks. somewhat similar like the declamation. Yeah, declamation, yes, very correct, but when you say a character of that person,
But declamation, we have Declamation Speech of a person. Here we can choose any other object, even Yes. covered they can. Is that clear? Declamation exact speech of that person. Whereas the character portrait, you are portraying that character. जैसे मैंने बोला, I can become an eraser also at all. है ना? And a cupboard and a blackboard, anything. Is that clear to all of you? So character portrait भी करवा सकते हैं आप. Clear? Dialogue presentation, character portrait आप oral interviews में करवाए और क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तब आप उसको ले सकते हैं. Because at least children will speak. When they speak, they'll be able to write also. तो इतनी सारी चीजें हो गई आपकी group discussion. How it is different? Like it's like a round table. Round table में हर आप person अपना view express कर रहा है. लेकिन cutting tree is good for the environment. I feel it is okay if we cut a few trees for our use, but if you cut the trees incessantly, it is not good to help the atmosphere. So किसी ने बोला, but see in this century also we are living a healthy life only. Maybe there are problems, but that doesn't mean that because of no trees we are getting extinct. तो अपने अपने views बोलते बोलते last में जो final leader होगा, he or she has to sum up everything. It's like a circle type of engaging. मतलब हर किसी ने क्या किया? उस टॉपिक के लिए अपने कुछ views, किसी ने फॉर बोला, किसी ने अगेंस्ट बोला, तो you can have group discussion also. That would be also better initially. कोई बच्चे, हर बच्चे को एक या दो सेंटेंस बोलना है. Is it clear to all of you? So you can use such innovative strategies also for your वो है your innovative strategies. ठीक है ना? फिर बच्चों से मैंने बोला KWL है, quiz है, quiz भी करवा सकते हो आप क्लास के अंदर. ठीक है ना? Venn diagram किसके लिए? जैसे आपने बोला मेरे को भाई प्लांट्स और एनिमल्स से पढ़ाना है, तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मैंने उसको पिक्चर दिखा दिया उसे. सी जैसे आप बोलते हैं ना मेज सिखाते हैं हम लोग, मेज सिखाते वक्त दो पिक्चर दिखाए हैं, इसमें आप बताओ क्या डिफरेंस है. तो दिस इज नोन एज अ मेज एक्टिविटी फॉर प्लांट एंड एनिमल्स. rather than explaining this is what is a plant cell, this is what is an animal cell. So you what you have done? I said your tool is a maze activity on plant and animal cell. So you first showed them the plant cell. Okay. Then you showed them the animal cell. Now say recall. You tell them this is your recalling skills. Recall and complete the Venn diagram in groups. तुम्हारा सर्किट होता है सीरीज एंड पैरेलल. दिखाया उसको recall. Rather than explaining, उनको engage किया. फिर उसके बाद आप explain. क्योंकि बच्चे कुछ तो देंगे आपको. This is clear to all of you? Any doubt in this? Any doubt? So now we start this. So your plan is over. Now we come to skill-based framework. And please, if there is any doubt, you have to ask me. Because अभी अगला सेशन दोबारा मैं सेम ही रिपीट करूँगी आपके साथ. जब तक आप थर्म लगा और मेरे ख्याल से स्किल बेस्ड फ्रेमवर्क में डाल चुके हैं आप उनको. Yes, तो आज दोबारा देख लेना उसको. देखो आपका ये है लैंग्वेज. फर्स्ट वीक एंड थर्ड वीक में हम क्या करेंगे? पहले तो जब हमने पूरा ब्रेनस्टॉर्म, तो बच्चों को क्या बोलना है? एक दिन पहले अपने रिलेशन पढ़ रहे ना बच्चे, आ गए ना उसमें. अब कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे? प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. You will not do any smaller classes also. You can break up the lesson. And again I am telling you from grade 1, even in 9th, you can give the model reading. Is that clear to all of you? In grade 1 to 5, I want you to give the model reading of the whole lesson. जितना ले रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आज मैं इस वीक में आधा लेसन ले रही हूँ. बच्चों को एक मॉडल रीडिंग तो आना चाहिए ना. चलो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आपको होल लेसन का देना है कि एक पैराग्राफ का देना है? पैराग्राफ. तो उसको पहले क्या आप कैसे बोलोगे आप लोग? Children, follow the voice modulation, intonation, pitch, accent and diction that I am giving you. Likewise, you have to read the lesson. And please follow the punctuation marks properly while reading. Because that is more important. No? Then give them some example. If there is an exclamation mark, what should be the expression? It should be an expression of surprise. Wow! What a beautiful dress. What are you doing? Expression of interrogation in my words. इस तरह से कुछ examples उनको देना जरूरी है. Is it clear to all of you? Using those punctuation marks so that they understand how to do with the model reading. Then you tell them, likewise you have to read the lesson and record and send it to me. I think all should not train now. Right from grade 1 they are trained, now they are doing it. Yes. कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बच्चे? तो किया आपने
और अभी क्या करना है आपको ना, जिग्सॉ रीडिंग जैसे देना है, पूरे बच्चों को एक लेसन मत दे देना, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। जैसे बोला ये बच्चे, इस रो के बच्चे फर्स्ट पार्ट में करेंगे। जैसे आपके पास 16 बच्चे हैं क्लास में और लेसन 4 भाग में डिवाइड हो रहा है। If you've got 16 children in your class and the lesson is being divided into 4 parts, तो क्या होगा? आपने बोला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 4 पेयर बनाना है। All ones will read the first part of the lesson. All twos will read the second part. All threes will read the all fours will read the fourth part. ये हो गया? और उनको बोला when you read, underline what you have understood. Okay? That's it. Whichever words and this thing. Next, and then make a small summary of what you have understood. Tell them to do that. So make a small summary of what you have understood in your notebook. ये हो गया? Next day when they come, make all the 1 sit together, 2 sit together, 3 sit together, or 4 sit together. Or you can do one thing. 1 2 3 4 by group बना लो. You बोला. Now tell me, what is that you have not in the first part? What you have not understood? Everyone, all the ones, tell me what you have not understood. बोलेंगे. आपने बोर्ड पर लिख दिया तो आपने उसको रिपोर्ट में से करेगा है. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Okay. Is it clear to all of you? Part 1 में जो भी नहीं समझा, आप उसके एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे. इस तरह से आप करते चलेंगे. और क्या होगा? देखो, for example, I have not understood something. She has understood something. So I'll say, okay, what did not understand? Part 1. I asked one child, I did not understand. So anyone can give me the answer. और कोई बोल सकता है, yes, I understood. Okay, tell me what is it? सही है, very good, very good. बोलिए क्या? तो उसमें क्या होता है कि within the days you are able to sum up the lesson. Summing up the lesson happens like this. So what is that you have to do? Brainstorming session of lesson with puzzling out the contextual meaning. साथ-साथ मैंने क्या किया? We kept telling them that and don't go for too many words. I've already standardized the way you have done for your foundation. 2 कितना है? 2 3 5 नहीं है ना 7 तक नहीं है ना हम लोग 2 3 5 उतना ही. तो 5 वर्ड क्लियर करने बहुत अच्छा है. साथ-साथ हमने क्या किया? First contextual. You're asking them and you're going on writing also so that they can copy you together. ये हो गया आप लोगों का. उसके बाद क्या बोला है हमने? And see give etymological words on Saturday. ये मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को. ये कौन सा इंग्लिश का ये ना? Give etymological words on Saturday is part of it. गलत हो गया ये. This is for social. हाँ वही तो इंग्लिश का निकाले ना. अच्छा geometry का इंग्लिश में. This is for social science, not for. This is because I have clubbed it together. Okay, उसके बाद आपका है Tuesday. Creative writing with the given clues, work in pairs. अब आपको दिया है कि आप कैसे creative writing करवा रहे हैं. Same thing. Lesson का कोई topic ले तो lesson का topic ले लीजिए. तो आपका वो भी complete होता चला जाएगा. Next क्या आपका? मैंने आपको instructions दिए हुए हैं. आप देख लीजिए. According to the instruction, आज ना एक और बार डाल रहे हैं because there are new teachers. So let's go through it. I've already given see grade introduction body grade 1 के लिए कितना grade 2 के लिए कितना दिया हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंग. तो पहले से functional grammar related to the blueprint of grade 10 grammar का portion. अच्छा तो grade 10 का grammar निकाल लेना जो उन्होंने दिया होगा ना grade 10 के उसके हिसाब से मैं आपको अभी क्या करो grade 10 का grammar portion बोला but same way in gradation only it is given in the textbooks. जो आपके टेक्स्ट बुक्स में जो ग्रामर है whatever grammar is there in your textbook उसको ही आपको that's only better yes do that itself whatever grammar you got with the lessons that itself will do with the children but again you won't start with the definition what is not as an example practice well yeah so actually an example to lead them is it clear and is there any doubt in doing it मुझे कैसे करना नहीं मालूम है you have to approach so that I can help you. Okay, first you approach your academic coordinator. You surprise your academic coordinator. You approach her कि मैडम क्या करना है इसमें. And if it is Hindi exam, you can approach Vinita. If it is maths, you will approach Jitendra sir. And if it is science, you will approach Sneha ma'am. Is it clear? Computers only you do other, you can do together. But इस बार computers कुछ और teachers को मैं दूँगी टाइम पे. And you will approach Shweta for Shweta and Aakarshan for that. So these are your HODs. Is it clear to all of you? For English, who will you approach? English and social science. Who will you approach?
Shimla ma'am. For Hindi and Sanskrit, who will you approach? Vinita ma'am. For maths, who will you approach? For science, who will you approach? Is it clear? And for computers? And KT, who will you approach? Is that clear? Shivani ma'am. Clear to all? And you have to do your assembly work properly. And see, one more thing, when I'm reminding